સમજાય દીધું મજા કરવા થાય ક્યાં બેવાનું છે જગ્યા છે ને વચ્ચે દીદી ત્યાં ગોઠવી દો અમુક સામાન ઉભો રે ઈ તારા નીચે રાખું તું કે વાંધો નહીં ટાટા લઈ લઉં છું પાછળ જવા દો ક્યાં જાઓ છો ક્યાં જાઓ છો જયપુર અરે અહીંયા પાછળ જવા દે ને યાર જવા દે પાછળ નાગણેશ્વર સારે બોલો જય હનુમાન દાદાની જય કેતો તાર પપ્પા અહીં સુઈ જાય અહીંયા નીચે જીજાજી કોફી આ બીજી લઈ લેજો ચા બધું બીજી ના પણ આ નીચે મસાલા વગરના લઈ લે કઈ આ તીખો મસાલો હેલો બંને સ્ટેચ્યુ હલતા નહીં જે બી હલી ગયું ને એને સરપ્રાઈઝ નહીં મળે वो 11 रुपये हाँ मैं तो काढ़ी ना वो अंदर माता जी ने તે વિચાર્યું ત્યાંથી અલગ જ છે નાખો ચાલુ જ છે આ ધર્મશાળા બહુ મસ્ત છે પપ્પા કહેતા હતા હા બહુ ફાઇન છે રૂમો સારા છે અહીંયા જૂતા ખોલ દેવું પડશે સાચું की जगह है જીગર તું ફોટો પાડજો
મળું હે શું કરે છે તો એમાં સુજા હળ ઊભી થઈ ગયા સેમ કાંડા કાઢે છે
नहीं खाऊ કાજુ તમે શું કેળું ओ भाई भाई પહોંચી જઈએ એવું કહેતા હતા કે લોકો આવે
ओ माय गॉड। અહીંયા આગળ આમ ત્યાં હું સેલ્ફીમાં બાપા નાનું હીરા આઈ જાઓ. આઈ જાઓ બે જણે. ચપ્પલ કાઢીને ચપ્પલ કાઢી. યાનું તું હીવા અહીંયા આઈ જા. આમથી આવજે. અમાર જો આવું બધા ફોટા ઉપર આવું જ છે. અહીંયા બે પીકોકો બેઠા છે. તમે યાનાનું પાડો ને. અરે લો પાડ દેજો. હા બંધ રાખું કહું એટલે તો સેશન ચાલુ છે. અહીંયા ચોટીસ નહીં એકદમ. બંધ જ રાખું કહીશ. ચોટીસ નહીં આમ કહું છું. Badu, Badu. તો બધા દર્શન થાય પ્લેટફોર્મના બધા સલાસરમાં હતું જ નહીં હું બધું હાથે કરીને થાય એમની જો બધું હોય આઈડિયા. થેન્ક યુ. छोकरी के तो बहुत क्यूट लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। ओए निकल चल साला सर
ચાલુ જ છે. હેલો બધું I love you બધું. ટેણાઓ તો જો લે તારો હેલો બધું I love you બધું. બંધ કરી દીધો હવે. ભૈયા વાળા ઉપર નહીં બેસવા નહીં પાછળ બેસવાનું. અરે અહીંયા બેસતું એને વચ્ચે રાખજો એની વાત. અને તમે પાછળથી આનંદ પકડજો. દવે કોમ્પ્લેક્સ છે ને ના ના રવા દો. ત્રિમૂર્તિ દવે કોમ્પ્લેક્સ ત્રિમૂર્તિ ના બાય બાય કરજો તમાર બાય હિવા બાય જીગલુ. હાય બચ્ચું. બધુરી I love you બધું. મારો બચ્ચો કેમ સેમુ મોઢું બગાડે છે? વાહ સેમુ વાહ. એ વાંદરા ઉપર ઉતર નીચે. ચાલ ચાલ આપણે વિડીયો ઉતારીએ. ચાલ તમારા માટે તુલસી લાવે છે, ખાઓ તુલસી. ચલો છોકરાઓ. ઉપર ધોઈ દો હો. એ હિરોઈન શું કરે છે તું? અમે લાયા દૂધ અને બધું ઓનલાઈન લઈ લઈએ. હેલો હાય જિંગલ ઓ
लाइए निकालिए ये मेरे को दिया પપ્પા કે મારી ચા જરા લઈ જ લેજે ટાઈમ મળે તો બહુ લેતી નહીં પણ ઉચકવામાં જ જાય ના ના તો મને તો લેવાનું એટલે દવા જેવું ના કરતી 2 કિલો દવા લઈ આ તો ઓછી છે ભીડ દિવાળીના લીધે અરે તારે જ વિડીયો ઉતારવાનો છે આનો આવતી રે તારો આવી ગયો તારો વિડીયો આવી ગયો લે સ્ટાર્ટ જ છે જે ચા પીવે છે ને તારી આંગળી લઈ લે પેલા ચા બધાનો સામે જઈને બધા આવવા જોઈએ ઘરમાં જેટલા છે ને બધા આવવા જોઈએ હાય કરો હાય યુ હાય કેમેરા આગળ હાથ લઈ લે બેટા હાય કેમેરા આગળ હાથ પાછળ છે હાય કેમેરામાંથી આંગળી લઈ લે તું ડાબો હાથ કેમેરા આગળ મૂકો ઉપર વાળો હાથ છે ને એ થોડો નીચે લઈ લે બધા દેખાવા જોઈએ સેમુ અહીંયા અમારું ઉતારાય છે ત્યાં માણસ બા હાય જા દાદાને ઉતારીએ જા ચાલુ જ છે દાદાને ઉતારીએ પાસે જો વોશિંગ મશીન દાદા હા હાય જો પાછળ હાય કરો આર્યન ફ્રી હાય હીવા અમારે પાસે જો. બહુ ગંદા થતા ને બધા લોકો. હીવા પાસે જો હાય કર બીજા 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 થઈ ગયો ભસ્યો કટ કરો દિલ પર નહીં આવે મન તો નહીં ભાવતી. કરીશું હમણાં સાંજે તાર કોટી લેવાની મારે કોટી લેવાની બોલાય 1100 1150 હાજર આખું રેસ્ટોરેશન કરીને પહેલા જેવું કશું રહ્યું ઓરિજિનાલિટી નથી રહી કઈ બારે માર્યો છે રાણીઓને ત્યાંથી જોવાનું છે રાણીઓને હવા આવે ને કલરફુલ અરીસા છે એટલે અંદર આપણે ત્યાં ત્યાંથી જોવે રાણી આખો ફેલાયેલો છો હા જયપુરના રાજા જયપુરમાં નથી હોતું પ્રજા નથી અચ્છા બહાર ગયા છે રાજા બહાર ગયા પેલા લોકો હાથી ઉપર બેસ્યા દેખાયું જો હીવા પેલા લોકો હાથી ઉપર ના મેળ તો જે આગળ 600 મીટર જેવું જ ચાલવાનું છે ગળતુડી વઢવાણ હેન્ડલ એવું છે ને જા મમ્મી આ બાજુ હાય સમાર
यानो अगर सभी देखिए, आप जो आमिर पैलेस विजिट करने आए हो, तो आमिर पैलेस की जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी 1589 के अंदर राजा मानसिंह जी के द्वारा। उससे पहले जो राज परिवार के मेंबर हुआ करते थे, तो यहाँ से आप नीचे तो वहाँ पे एक पैलेस बना हुआ दिखेगा। वो जो पैलेस बना हुआ दिख रहा है उसका नाम है जोधा पैलेस, जहाँ पे जोधाबाई का जन्म और विवाह हुआ था। जैसे आपने जोधा अकबर मूवी देखी है, उसके अंदर आमिर पैलेस का सीन बताया जाता है, बट ओरिजिनलिटी में उनका जन्म वहीं पे हुआ था, उसी पैलेस के अंदर। तो आमिर पैलेस बनने से पहले जो राज परिवार के मेंबर हुआ करते थे, डाउन साइड में उसी पैलेस के अंदर रहा करते थे। और यहाँ से ऊपर की तरफ आप देखोगे तो वहाँ पे बना हुआ दिखेगा आपको जैगर्ड फोर्ट, जो आर्मी के लिए बनाया गया है। पहले के टाइम पे जितनी भी जो आर्मी हुआ करती थी वो जैगर्ड फोर्ट के अंदर रहा करती थी, और राजा और रानियों के लिए बनाया गया है आमिर पैलेस। पैलेस के अंदर अभी आप एंटर करोगे तो वहाँ पे कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप क्लियर कर लेना। जहाँ से आप एंटर करोगे वहाँ से एग्जिट नहीं, आपका एग्जिट करने के लिए रास्ता अलग बना हुआ है ना, तो ऐसा नहीं कि दोबारा आएंगे तब पूछेंगे। तो कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर लेना ना। आ जाओ। हाय चलो कितने डेकोरेशन आइटम पिस्तल ब्रास। हाय Tell you. हाय चलो इंस्ट्रूमेंट वगैरह टोपी पहना है तो ये वो टोपी पहन नीचे छतरी क्या गई है मम्मी, नीचे छतरी। पहले 4 पार्ट में पूरा पैलेस बना हुआ है। वैसे आपका सबसे बड़ा नहीं जाओ नहीं जाओ ये આગળ આવતી રહે અહીંયા આગળ ખાઈ જાઓ લેફ્ટ છે કે આમ છે? क्या बताइए एमओ अपना बाजू आगे से भी आगे आगे यहाँ से अगर आप सामने की तरफ देखोगे तो पहाड़ के ऊपर आपको एक दीवार बना हुआ दिखेगा। वो जो दीवार आप बनी हुई देख रहे हो वो है इस पैलेस की सिक्योरिटी लाइन, बाउंड्री वॉल। और दुनिया का जो तीसरा सबसे लंबा बाउंड्री वॉल है वो है आमिर पैलेस का, जो आपको इस पैलेस के चारों तरफ बना हुआ दिखेगा। राइट साइड में बना हुआ है, सामने की तरफ बना हुआ है, और लेफ्ट साइड में भी बना हुआ है। ये जो बाउंड्री वॉल बना हुआ है उसकी जो टोटल लंबाई है वो है 12 किलोमीटर। और बाउंड्री वॉल के ऊपर आप देखोगे कुछ डिस्टेंस में बने हुए वॉच टावर, छतरियाँ। वॉच टावर जो बने हुए उनके अंदर रखे जाते थे ढोल। बाहर से अगर दूसरी सेना की कोई भी हलचल होती है, छतरी में जो ढोल रखा हुआ उस ढोल को बजा के पूरी सेना को अलर्ट किया जाता था। उससे क्या होता है, जो पैलेस के अंदर सैनिक हुआ करते थे वो भी अलर्ट हो जाते थे, और गांव के अंदर जो सैनिक तैनात रहा करते थे वो भी अलर्ट हो जाते थे। लेफ्ट साइड में जहाँ गेट देख रहे हो, जहाँ से भी आपने एंटर किया है, गेट का नाम है चांदपोल द्वार, मून गेट। पहले के टाइम पे देखिए जो आम जनता हुआ करती थी उनका एंट्री होता था चांदपोल गेट के द्वारा। और उसी के जस्ट सामने की तरफ राइट साइड में आप देखोगे तो दूसरा एक और गेट बना हुआ है। गेट का नाम है सूरजपोल द्वार, सन गेट। राजा और राजा के जो खास मेहमान हुआ करते थे उनका एंट्री होता था सूरजपोल गेट के द्वारा। और ये जो ग्राउंड बना हुआ आप देख रहे हो, ग्राउंड का नाम है जलेब चौक, परेड ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। पहले के टाइम पे जो आर्मी हुआ करती थी मॉर्निंग टाइम यहाँ पे परेड वगैरह किया करती थी, और जितनी भी जो आर्मी होती जो मॉर्निंग टाइम में सलामी देने का जो कार्य हुआ करता था वो भी यहीं से किया करते थे। अब जो परेड ग्राउंड बना हुआ है उसके जस्ट सामने की तरफ आप देखोगे तो आपको गिलास लगे हुए दिखेंगे, दिख रहे सामने की तरफ। वहाँ पे रखे जाते थे हस्तबल, जैसे घोड़े वगैरह जो भी होते हैं उनको संभाल के वहाँ पे रखा जाता था। अब ये जो आमिर पैलेस आप विजिट करने आए उसकी जो नींव रखी गई है 1589 में इसकी नींव रखी थी राजा मानसिंह जी ने। पूरा पैलेस कंप्लीट होने के लिए 137 साल का टाइम लगा, 1727 में बन के कम्प्लीट हुआ था। उस टाइम यहाँ के राजा थे सवाई जयसिंह सेकंड, जिन्होंने जयपुर बसाया।
जयपुर जो आप देखते हो पूरा वास्तु के अनुसार बना हुआ है, उसी प्रकार से जो आमिर पैलेस आप विजिट करने आए पूरा वास्तु के अनुसार बना हुआ है। आमिर पैलेस को बनाने के अंदर जो मुख्य योगदान है वो है 3 राजाओं का। फर्स्ट पे आता है राजा मानसिंह जी, जिन्होंने इस पैलेस की नींव रखी। राजा मानसिंह जी के टोटल 12 रानियाँ थी और 12 रानियों के लिए यहाँ पे बने हुए 12 महल। सेकंड पे आते हैं मिर्जा राजा जयसिंह जी। मिर्जा राजा जयसिंह जी के 2 रानियाँ थी और दोनों रानियों के लिए उन्होंने यहाँ पे निर्माण करवाया था शीश महल का, मिरर पैलेस। और एशिया का जो सबसे बड़ा मिरर पैलेस है वो भी इसी आमिर पैलेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। थर्ड पे जो राजा है वो है राम सिंह जी, और राम सिंह जी का जो कार्यकाल था वो था 1835 से 1880 का अंतराल। तो उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर यहाँ पे निर्माण करवाया था बिलियर्ड्स रूम का। जो बिलियर्ड्स गेम होता है उसके लिए यहाँ पे एक सेपरेट रूम का निर्माण किया गया है। बाहर की तरफ कोई डाउट आपको? मिर्जा की जो उपाधि मिली है मिर्जा राजा जयसिंह जी को मिली है, मानसिंह जी के पोते। और जो सवाई की जो उपाधि मिली है सवाई जयसिंह द्वितीय को मिली है, जिन्होंने जयपुर बसाया था। सभी का मतलब अलग अलग होता है, इनको एक उपाधि मिली हुई है। मिर्जा कोई मुस्लिम के ऊपर ऐसा होता है। नहीं तो है। मिर्जा का मतलब क्या होता है? आप मिर्जा का मतलब आप देखोगे तो नॉर्मली यहाँ की जो राजा थे मिर्जा राजा जयसिंह जी, वो अपने जो उनके पिताजी थे भाव सिंह जी, उनके एक सिंगल पुत्र थे। और जो औरंगजेब थे उन्होंने उनको ये जो उपाधि दी थी, सिंह की उपाधि जैसे कि मान सिंह जी को दी थी तो शेर होता है, सवाई का मतलब होता है 1 से अधिक। वैसे ही मिर्जा का मतलब भी यही होता है कि ताकतवर इंसान। क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह जी ने आमेर के अंदर आप देखोगे जो गांव बना हुआ है इसके अंदर टोटल 365 मंदिरों का निर्माण करवाया है। और आमेर का जो नाम है ओरिजिनल नाम इसका आमेर नहीं है, अम्बेर है। और इसका जो पुराना नाम था जैसे कि 967 में यहाँ पे राज हुआ करता था आदिवासी मीना समाज के लोगों का, तो उस टाइम पे यहाँ पे अंबिकेश्वरपुर इस जगह का नाम था आमेर गाँव। उसके बाद में जो औरंगजेब यहाँ पे शासन किया था राजस्थान के अंदर, तो उस टाइम पे 2 दिन के लिए इस आमेर का नाम मोमिनाबाद किया गया था। फिर उसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह जी ने इसका नाम चेंज करके अम्बेर किया था, और प्रेजेंट टाइम में अम्बेर के नाम से ही जाना जाता है, ना कि आमेर। आमेर इसके निकनेम है। अच्छा, बाहर का जो ओपन एरिया आप देख रहे हो वहाँ पे बैठा करती थी आम जनता जो यहाँ पे सुनवाई के लिए आया करती थी। उसी प्रकार से आप देखोगे सेंटर में बैठा करते थे राजा, और दोनों साइड में बना हुआ कॉमन एरिया यहाँ पे बैठा करते थे। क्या करते हैं मंत्री संतरी सेनापति जो भी उनके खास हुआ करते थे। पूरा जो स्ट्रक्चर आप देखोगे 48 पिलर से बना हुआ है। ये है इस पैलेस का मेन एंट्रेंस। गेट का नाम है गणेशपुर द्वार। हिंदू धर्म में क्या होता है, सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके बाद में सभी कार्य स्टार्ट किए जाते हैं। गेट के सेंटर में आप देखोगे तो गणेश जी की एक बहुत प्यारी पेंटिंग बनी हुई है। और ये जो पेंटिंग आप यहाँ पे बनी हुई देख रहे हो 1638 के अंदर जब ये गेट बन के कम्प्लीट हुआ था, उसी टाइम इस गेट के ऊपर ये पेंटिंग्स बनाई गई है। दोबारा ना इस पेंटिंग को दोबारा रेनोवेट किया गया है, ना ही किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई है। 400 साल पुराना कलर है, और वो कलर वैसा का वैसा अभी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे ग्रीन कलर जो आप देखोगे पालक बथुआ हरी पत्तियों से, रेड कलर गाजर टमाटर चुकंदर, येलो कलर कच्चा हल्दी सनफ्लावर नींबू का छिलका केले का छिलका, ब्राउन कलर जो हाथों में मेहंदी लगाते हैं उससे, और ब्लैक कलर होता है जो पेड़ की छाल से और लोहे से तैयार किया गया कलर है। जितने भी जो कलर है सभी नेचुरल कलर है, 400 साल पुराने कलर है, और वैसा का वैसा कलर अभी भी आपको देखने को मिलता है। गणेश जी की जहाँ पे पेंटिंग बनी हुई है वहाँ पे अगर आप कलर देखते हो तो कलर डार्क है, बट बाहर का जो एरिया है वहाँ पे अगर आप कलर को देखते हो तो वहाँ पे लाइट है, क्योंकि बाहर की तरफ धूप भी है बारिश भी है, इसीलिए कलर लाइट हो चुका है। बट जहाँ पे गणेश जी की पेंटिंग है वहाँ पे ना कोई धूप है ना कोई बारिश है, इसीलिए कलर है बिल्कुल सेपरेट बचा हुआ है पूरा। क्योंकि अगर अंदर की तरफ आप दोनों पेंटिंग देखते हो तो अंदर की तरफ बनी हुई है। सनग्लास हटा लो सभी। बाहर से देखोगे तो आपको नॉर्मल पेंटिंग दिखेगी जैसे सभी पेंटिंग बनी हुई रहती है, बट ये है इस पैलेस की सबसे यूनिक पेंटिंग। अभी आप सभी आ जाओ। बाहर से पेंटिंग को देखा था आपने, अब अंदर से भी देख रहे हो तो क्या चेंजेस देख रहे हो? પેલું કિચન ફિટિંગ થયું ત્યારે આ ગાર્ડન નહોતું કર્યું. પરત તલવાર બનશે. બહુ જ પ્રી વેડિંગ છે અહીંયા.
દે. એ તું જો પડી ના જતા मिरर पैलेस, शीश महल और एशिया का जो सबसे बड़ा मिरर पैलेस है उसी के अंदर अभी आप खड़े हो। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो आपको छोटे छोटे टुकड़ों में गिलास लगे हुए दिखेंगे। जितने भी जो गिलास यहाँ पे लगे हुए सभी हार्ट शेप में लगे हुए कॉन्वेक्स गिलास। और ये बताया जाता है जो गिलास यहाँ पे लगे हुए खास बेल्जियम से लाए हुए गिलास है उस टाइम पे। तो जो गिलास आप देखोगे तो पहले के टाइम पे क्या होता था, सर्दियों का जो टाइम होता था पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, ठंडी हवा सीधा पैलेस के अंदर एंटर किया करती थी। तो बाहर के तरफ लगा दिए जाते थे पर्दे। पर्दे लगाने के बाद जो बाहर की हवा टोटल 12 रानियाँ और 12 रानियों के लिए यहाँ पे बने हुए 12 महल। नीचे का जो पूरा एरिया आप देखोगे पूरा रानियों के लिए बना हुआ है। ऊपर का एरिया जहाँ पे अभी आप खड़े हो ये राजा के लिए, और ये राइट साइड में जो एरिया बना हुआ है ये उनके सर्वेंट्स के लिए। तो राजा जो हुआ करते थे, राजा यहाँ पे रहा करते थे। सभी रानियों पे निगरानी रखना हो तो यहीं से रखना। अगर राजा को अगर सभी रानियों से एक साथ बात करना हो तो उसके लिए यूज़ में लिया जाता था वो सेंटर वाला एरिया। सेंटर में बैठा करते थे राजा और बाहर के तरफ बैठा करती थी उनकी रानियाँ। जगह का नाम है 12 दरी। 12 रानियों के लिए 12 आसन लगाए जाते थे बैठने के लिए, इसलिए जगह का नाम 12 दरी रखा गया। और राजा का जो महल बना हुआ है અઢાર લેવાના 18 ઈવા મસ્ત આવે ને એટલા ફોટા પડાવો. કોણ ઠંડી ચલો બસ કે કયા કસીરોમાં બેઠો છો? દવે એવું જ લાગે એમ. ત્રિમૂર્તિ દવે રચના બસ મમ્મી દાવ તારા બધા પત્તા જોવે છે બ્લુ નાખ શું વિડિયો તું જઈશ આગળ સીધી કોને બોલ્યા બાય બોલ્યું બાય બોલ્યું તને
હું કદાચ જઈશ ને તો મને આપણે ત્રણે સાથે આવે. મેં પકડેલું જ તમે તારો ભાગ મૂકી લે, વાંધો નહીં. હો કોણ છે? દિવસ ના ચાલે, દસમી ના ચાલે. અલા પણ બધા આવા આઈ ગયો. ચલો મેં નાખી દીધું. હાલો उस हिसाब से मैं घुमाता हूँ मैं। 1 घंटा है. 1 घंटा है आपके पास? चलने दीजिए। ये पूरा किला, हाँ थोड़ा आपको भी 1 घंटे में भी कवर नहीं होगा क्योंकि अभी रश टाइम है, तो आपको थोड़ा सा आपको भी फास्ट करना पड़ेगा मेरे साथ, बराबर. ठीक है? क्योंकि ज़्यादा देखेंगे तो आपको मजा आएगा। ये पूरा किला जो है 13 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप का सबसे बिगेस्ट और लार्जेस्ट फोर्ट है। इस किले के अंदर किसी एक राजा ने शासन नहीं किया। इस किले के ऊपर टोटल 55 राजाओं ने शासन किया। 27 बार इस किले के अंदर आक्रमण हुआ और 3 आक्रमण ऐसे होते हैं कि राजपूत सेना हार जाती है और जौहर के रूप में होता है। तो इस किले को 3 बार डिस्ट्रॉय किया हुआ है। तो प्रेजेंट टाइम में इस किले के अंदर देखने के लिए पत्थर बचा हुआ और सुनने के लिए है इतिहास है। तो पूरे किले के अंदर अपने को 80% अपने गाड़ी से विजिट करना रहेगा, 20% अपने को उतर के देखना पड़ेगा। नजर रखना, गाड़ी में डाल रहा हूँ, सब पीछे लाइन लगी हुई है, राइट लेना है। हाँ, उस गाड़ी के पीछे कट में पूरा किला फैला हुआ है। मेरा वीडियो में लीजिए आप साइड में। ये पूरा किला 700 एकड़ में फैला हुआ है। 300 एकड़ के अंदर यहाँ सीताफल का खेती होता है। 90% जो अपन किले के ऊपर पेड़ देखेंगे सारा अपने को सीताफल का देखने के लिए मिलता है। तो ये सबसे तो वीडियो उतारे हैं? फोटो હું પાડી આપીશ બેસ્ટ લોકેશન પર. હા બહુ મસ્ત છે. ના તમે બે ના હાથ પકડશો. ના ના યાનો છોડ દે. યાનો बिल्डन की पावनगरी में आपका स्वागत है। आपने पता चुका कि किला 13 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है।
ये अपने किले का सबसे मेन पार्ट है, जहाँ अपने सबसे ज़्यादा समय लगने वाला है। देखना, घूमना फिरना, चलना, यही सबसे। फर्स्ट आप सामने आप जो टावर देखते हो, इसका निर्माण राणा कुंभा ने मालवा एंड गुजरात 2 स्टेट्स पर एक साथ में विजय प्राप्त किया। उसी की जीत की खुशी में, विजय के उपलक्ष्य में ये स्तंभ बनाया। हिंदू धर्म में 9 ग्रह होता है, इसलिए इसको 9 मंजिला बनाया है। नीचे से चौड़ा बना हुआ है, बीच में से सकड़ा है, ऊपर से चौड़ा बना है। भोलेनाथ का जो डमरू होता है उसकी शेप का ये बना है। इसके ऊपर जाने के लिए 157 स्टेप्स हैं, 122 उसकी हाइट है, बट कोविड-19 से इसको क्लोज किया है। बट इस किले के अंदर जो सबसे बड़ा जो अटैक किया था 1303 के अंदर, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अटैक किया था, जो दिल्ली का सुल्तान था। यहाँ पर ऐसा नहीं कि रानी के लिए अटैक किया उन्होंने, अपन बुक्स में इनमें पढ़ेंगे तो अपने दिखाया जाता है कि रानी पद्मिनी का हासिल करना चाहता है। लेकिन कोई भी राजा उन्हें रानी के लिए अटैक नहीं करता है। जब वो दिल्ली का शासक था तो उसका मालवा और गुजरात दोनों जगह उसका थी, उसी का तो कोर्ट के जो वंशज हैं वो उदयपुर में रहते हैं। 1 साल में एक बार यहाँ से होली के 10 दिन पाकिस्तान में छक्के वाले हैं। चलो आई जाओ भाई, फैमिली फोटो। बेटा तुम मम्मी वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। बदो रानी का आना जाना इसके अंदर नाव से होता था, तो नाव का सुविधा नहीं है, तो 2005 से इसको बंद किया हुआ है, उधर गार्डन मेंटेन किया हुआ है। आपने पद्मिनी का हिस्ट्री पढ़ा होगा, मूवी देखा होगा, सुना होगा, उसमें आपको दिखाते हैं कि रानी को देखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी किले के अंदर आता है और उसका चेहरा मिरर में दिखाते हैं। लेकिन ये सारी बातें गलत है। रानी पद्मिनी का रियल चेहरा कभी किसी ने अदर्स ने नहीं देखा, क्योंकि हमें सिखाया गया कि जो रानी जौहर के लिए तैयार है, जो राजा युद्ध के लिए तैयार है, तो अपनी रानी का चेहरा किसी अदर्स को कैसे दिखा सकता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मूवी का विरोध हुआ। आपने कहानियां सुनी है, ये सारी बुक्स के ऊपर है और बुक्स में अपने को घुमाया हुआ है, क्योंकि ये सारा 1540 के अंदर लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी, जो एक मोहम्मदन था जिसने काल्पनिक काव्य लिखा था। बेटा चलो आगे। आने का रास्ता इधर से, हाँ, जाने का और है, जाने का वन वे है, तो होना वन वे है, लेकिन वन वे एग्जिट का वन वे नहीं है। होती है किसी को कुछ पुरस्कार दिया जाता है, कोई सहयोग करता है, तो हम उनको मामा से करके पुकारते और से, हाँ मामा से। આપણે એને કીધું કે હવે પૂરું કર,